السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں مہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو اپنی مخلوق کو مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ ہمیں ہر قسم کی بیماری اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے خبر دیں کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح کروڑ لال ایسن میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز ورکرز نے سٹورز بند کر دیے۔ ماہ رمضان سے ایک روز قبل یوٹیلیٹی سٹورز بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ دیکھیں خضر حبیب کی۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح کروڑ لال ایسن میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز ورکروں نے اپنے مطالبات کے حق میں یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز بند ہونے سے کرونا وائرس سے معاشی بدحالی کے شکار لوگ پریشان ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ یہی مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کو کھولا جائے اور جو غریب آدمی پہلے ہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے، بغیر پیسوں کے، اور پیسے جیب میں بھی ہیں تب بھی سامان نہیں مل رہا، یوٹیلیٹی سٹور تمام بند ہیں، لوگ ایسے ہی گھوم پھر کے واپس جا رہے ہیں۔ رمضان شریف آ رہا ہے، ٹھیکے سٹور بند ہیں، تو ہمارا یہی مطالبہ ہے جلد سے جلد سٹور کھولے جائیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے لوگ بہت پریشان ہیں، تو ہمارا یہی مطالبہ ہے جلد سے جلد کھولے جائیں۔ ماہ رمضان سے ایک روز قبل یوٹیلیٹی سٹورز بند ہونا عوام کے لیے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کرونا وائرس کے پیش نظر اس سال عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سستے رمضان بازار منعقد نہیں ہوں گے۔ اگر یوٹیلیٹی سٹورز نہیں کھولے گئے تو عوام کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیمرہ مین جان عابد کے ساتھ خضر حبیب خان، سچ ٹی وی، کروڑ لال ایسن۔ خبر دیں آپ کو، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی انتظامیہ اور ورکرز یونین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مطابق ملک بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی انتظامیہ اور ورکرز یونین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مطابق ملک بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے کامران چودھری سے۔ کامران، بتائیے گا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی انتظامیہ اور ورکرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں؟ بالکل، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی انتظامیہ اور ورکر یونینز کے درمیان جو ہیں وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ دوسرا دور تھا یہ مذاکرات کا، گزشتہ رات مذاکرات ہوئے تھے جو ناکام ہوئے تھے، اور اس کے بعد آج ملک بھر میں تمام یوٹیلیٹی سٹور جو تھے وہ بند کر دیے گئے تھے یونین کی جانب سے، جس کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تاہم اب جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اہم اجلاس میں جو ہے وہ یونینز کے لیے جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے ورکرز ہیں ان کے لیے مراعات کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور ان کے مطالبات بھی تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق جو ہے وہ ڈیلی ویجز ملازمین کی کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 15,000 سے بڑھا کر 17,500 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے تمام ملازمین کے لیے سالانہ انکریمنٹ جو ہے اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ بجٹ 2019 کے مطابق تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ رمضان ریلیف پیکج کے لیے 1 ماہ کی اضافی تنخواہ بطور اعزازیہ جو ہے وہ ورکرز کو دی جائے گی۔ اسی طرح سے شہید ہونے والے جتنے بھی ورکر ہیں ان کے شہداء کے لیے پیکج کی منظوری کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جبکہ شہید ہونے والے ورکر کے گھر والوں کو شہید کی تنخواہ اور دیگر مراعات دیے جائیں گے۔ اور اب جو ہے یہ بڑی خبر آئی ہے، رمضان المبارک سے قبل جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن یونین کی جانب سے جو جتنے بھی سٹورز ہیں ملک بھر میں ان کو بند کیا گیا تھا، تاہم اب جو ہے یہ صبح سے باقاعدہ طور پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جی کامران، یہ بھی بتائیے گا کہ ورکرز کے کون کون سے مطالبات منظور کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ورکرز کی جانب سے جو مطالبات کیے گئے تھے ان میں ڈیلی ویجز ملازمین کی کم سے کم تنخواہ میں جو ہے وہ 10% اضافے کا مطالبہ کیا گیا تھا، وہ مطالبہ بھی مان لیا گیا ہے۔ پہلے تنخواہ جو تھی وہ 15,000 روپے تھی ورکر کی، جسے بڑھا کر 17,500 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سالانہ انکریمنٹ میں اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا ورکرز کی جانب سے، اسے بھی دسمبر 2019 کے تحت جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے بجٹ 2019 کے مطابق 10% جو بیسک تنخواہ ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ رمضان ریلیف پیکج کے لیے 1 ماہ کی اضافی تنخواہ کا مطالبہ کیا گیا تھا ورکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے، وہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ 1 ماہ کی اعزازی تنخواہ بھی جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ورکرز کو ادا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یونین کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو ورکرز شہید ہو جاتے ہیں دوران کام ان کے لیے بھی جو ہے وہ پیکج کا اعلان کیا جائے، تو وہ پیکج بھی باقاعدہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں، اور شہید ہونے والے ورکر کے گھر والوں کے لیے بھی جو ہے وہ تنخواہ اور دیگر مراعات کا اعلان کیا گیا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ کامران چودھری، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی شیخوپورہ میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ رمضان بازار نہ لگائے جانے کے حکومتی اعلان کو غنیمت جانتے ہوئے ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوز سرگرم ہو گئے۔ رپورٹ دیکھیں عرفان مقبول کی۔
बरकतों वाले महीने रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही अशिया खुर्दनोश फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने रमजान बाजार ना लगाए जाने के हुकूमती ऐलान को गनीमत जानते हुए अवाम को लूटने के लिए कमर कस ली है। हर चीज की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जबकि सब्जी मंडी में जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई न करने की वजह से दुकानदार मन मर्जी का रेट लगाकर अशिया फरोख्त करने में मसरूफ है। रमजान की आमद है और बाजार में जिस तरह रमज़ान की आमद है उसी तरह रेट बढ़ते जा रहे हैं। किराने वाले, सब्जी वाले, फ्रूट वाले सबको 5-5, 10-10 रुपए डेली के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। रमज़ान आता है तो खुद ब खुद जो जितने भी सब्जी वाले हैं, जो जितने भी परचून वाले हैं, सब खुद ब खुद चीज़ें बढ़ा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद होने की वजह से गुजर बसर नागुज़ीर हो चुका है और ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इरफान मकबूल, सच न्यूज, शेखुपुरा। कमीर शरीफ में भी मुनाफाखोर लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। मुनाफाखोरों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया, जिससे शहरी परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए अफसन सयाल की। कमीर शरीफ में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, लेकिन कोरोना वायरस की उड़ान में दुकानदारों ने मनसूबी महंगाई पैदा कर रखी है। दुकानदार मनसूबी महंगाई पैदा करके नाजायज मुनाफा कमाने में मसरूफ, आम आदमी दुकानदारों के हाथों लूटने पर मजबूर। किराना से लेकर सब्जी फरोश तक सब के वारे न्यारे। एशिया खुर्दनोश के रेट आम आदमी की पहुंच से दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार तबका परेशान। इसी बारे शहरियों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होकर घरों में ही है, ऊपर महंगाई के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। हुकूमत वक्त को कोरोना से निपटने के साथ साथ इन गिरोह फरोशों से भी निपटे और हमें रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन तारांस के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज, कमीर शरीफ। रमजान मुबारक की आमद से कबल ही विहाड़ी में भी मुनाफाखोरों ने मुर्गी के गोश्त और सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया, जिससे शहरी परेशान हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद हसनैन अली। मुबारक की आमद से कबल ही विहाड़ी शहर में दुकानदारों ने खुद साख्ता ग्राम फरोशी कर दी है। मुर्गी के गोश्त में 2 दिन में 15 रुपए तक इजाफा किया है, जबकि सब्जियों में भी 10 से 15 रुपए तक इजाफा हो गया। आलू 35 से 55 रुपए, टमाटर 20 से 25, लहसुन देसी 90 से 110, जबकि चाइना लीमू 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने कहा है कि अभी रमजान मुबारक की आमद से कबल ही तमाम दुकानदारों ने खुद साख्ता कीमतों में इजाफा किया है, जिससे महंगाई और ज्यादा बढ़ चुकी है। ये रमजान का एहतराम नहीं बल्कि सरासर जुल्म है। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि खुद साख्ता कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरा टीम के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज, बिहाड़ी। अहमदपुर सियाल मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खजूर की मकामी पैदावार अच्छी होने के बावजूद रमजान मुबारक की आमद से कबल कीमत बढ़ा दी गई। रिपोर्ट करेंगे तसव्वुर अब्बास। रमजान मुबारक की आमद है, लेकिन अहमदपुर सियाल में खजूर हो गई आवाम की पहुंच से दूर। खजूर की मकामी पैदावार होने के बावजूद मुनाफाखोरी से आवाम परेशान। रमजान मुबारक जू करीब आ रहा है, खजूर महंगी होती जा रही है। आम खजूर 400 रुपए किलो और अच्छी खजूर 800 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। खजूर फरोशों का कहना है कि पुराना माल आड़तियों ने महंगा कर दिया है और नया माल बॉर्डर सील होने की वजह से नहीं आ रहा। शहरियों ने रमजान मुबारक में खजूर की कीमत कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ तसव्वुर अब्बास, सच टीवी, अहमदपुर सियाल। और मुल्क भर की तरह सिंध के शहर ठुल में मुनाफाखोरों ने अशिया खुर्दनोश कीमतों में इजाफा कर दिया, जिससे शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हामिद अली रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह ठुल में भी लॉकडाउन बदस्तूर जारी है, जिसके बायस दुकानदार, ताजिर और दिहाड़ी पर अजरत करने वाले मजदूर कारोबार बंद होने के बायस शदीद परेशान है। आसमान छूती महंगाई, भूख व अफलास और इंतहाई शदीद किस्म के ग़िज़ाई बहरानों ने मुल्की सतह पर सर उठाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों की तरह सिंध के शहर ठुल में भी महंगाई के आसेब ने खौफनाक सूरत हाल से अवाम को दो चार कर दिया है। खुदारा ये खत्म करें, बेरोजगारी इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है, हाथ महंगाई कर रहे हैं दुकान वाले, ये सूजी वाले। खुदारा एक गुजारिश है वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आज़म से, ये अपनी महंगाई को ख़त्म करें, लॉकडाउन को ख़त्म करें, गुर्बत को ख़त्म करें। ये राशन मनपसंद को दे रहे हैं,
ये मजदूरी देखो कितनी कम हो गई है, अल्लाह के वास्ते ये खत्म करें। रमजान से कबल टुल शहर में खूनी अशिया, सब्जी, दालें, गोश्त और दीगर अशिया की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। भूख, अफलास, फाका कशी का मंजर, भूख से बिलबिलाते बच्चे, इस नागुफ्ता सूरत हाल में अशिया खूननोश की कीमतों में होशर बा इजाफा भी अवाम की मुश्किलातों परेशानी में इजाफे का बायस बना हुआ है। मुल्क में खूनी अशिया की किल्लत और महंगाई दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, जिसने गरीबों का खून तक निचोड़ लिया है। रमजान से कबल अशिया खूननोश की कीमतों में इजाफा सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि गदागिरी और गुर्बत में इजाफे का दूसरा नाम है। कंदकोट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, शेख और नोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हो गए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला बरोही। मुल्क भर में कोरोना वायरस जैसे वबा से बचने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन है। लोगों को अपने घरों तक हुकूमत के जानिब से महदूद किया गया, तो दूसरे जानिब महंगाई की वजह से गरीबों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। महंगाई ने किया अवाम का बुरा हाल। रोज मजदूरी करने वाले और दिहाड़ीदार जहां लॉकडाउन के वजह से शदीद परेशान है, वहां महंगाई ने भी किया अवाम को परेशान। सब्जी, आटा, गेहूं, दाल और जरूरी एशियाई खुर्द नोशों के कीमतों में ही इंतहाई इजाफा नजर आ रहा है। अवाम का कहना है कि एक तरफ लॉकडाउन ने हमें परेशान किया, तो दूसरे जानिब महंगाई की वजह से हम खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। हुकूमत के जानिब से अवाम को रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा है और ऊपर से बरकत भरा माह रमजान का महीना आने वाला है। हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो बाबरकत महीने के लिए अवाम को रिलीफ फराम करें। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच टीवी न्यूज, कंदाकोट। फास्ट फूड में मेंढक और गधे के गोश्त का तो आपने सुना होगा, लेकिन कसूर में एक बर्गर फरोश ने एक ऐसा बर्गर फरोख्त किया जिसमें से इंसानी उंगली बरामद हुई। महकमा फूड ने शिकायत पर नोटिस लेते हुए मामले को फोरेंसिक इंक्वायरी के लिए भिजवा दिया। इंसानियत के दुश्मनों का अनोखा कारनामा, चुपके चुपके इंसानी गोश्त की फास्ट फूड चेन को सप्लाई का इंकशाफ। कसूर में इंसानी गोश्त से तैयार होने वाला बर्गर पकड़ा गया है। कसूर के इलाके नफीस कॉलोनी के शहरी ने मकामी बर्गर शॉप से चिकन जिंगर बर्गर लिया। जिंगर बर्गर को खाने के दौरान जब हड्डी महसूस होने पर मुंह से बाहर निकाली तो इंसानी उंगली के अगला हिस्सा नाखून समेत था, जिसको देखते ही शहरी की तबीयत खराब हो गई और उकाई आना शुरू हो गई। शहरी ने महकमा फूड को दरखास्त दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए महकमा फूड ने बर्गर फोरेंसिक तहकीकात के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया है। अहले इलाका का कहना है कि अगर बर्गर में इंसानी गोश्त का एक टुकड़ा मिला है तो यकीनन दीगर हिस्से भी हो सकते हैं। महकमे को इस इंक्वायरी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। खबर दें आपको, घोटकी में करंटीना मरकज से कोरोना के 10 पॉजिटिव मरीज फरार हो गए। फरार होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक तबलीगी जमात से था। महकमा सेहत ने फरार होने वाले अफराद की तलाश के लिए मुतालिका इंतजामिया और पुलिस को लिस्ट फराहम कर दी। फरार होने वाले अफराद ने घर पहुंचने की तस्दीक भी कर दी, जबकि SSP ने गफलत बरतने पर 8 एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया। कोरोना लॉकडाउन के बायस जहां दीगर कारोबार मुतासिर हुए, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। पाकपतन में ट्रांसपोर्टर ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से बसेस चलाने का मुतालबा कर दिया। चौधरी तारिक रिपोर्ट करेंगे। पाकपतन में लॉकडाउन के 22 हजारों घरों के चूल्हे ठंडे पड़े, तो वहीं ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी अपना रोना रो दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के 22 बस मालकान ने एहतजाज करते हुए बताया कि अब हम अपने घर का चूल्हा नहीं चला सकते। अगर चंद दिन मजीद ट्रांसपोर्ट बंद रही तो बात फकाकशी तक पहुँच जाएगी। घरां विच बैठे हुए हैं, बड़े परेशान आ, काम कोई नहीं हैगा, घर दे विच ना कोई राशन है, ना कोई गल है, ना कोई बात है। बड़े साडे बच्चे आवाज़ार ने, परेशान आ। सानू माली इमदाद दी जावे, साड़ियां गड्डियां चलाई जावन। बस मालकान का मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई मौसर हिकमत अमली अपनाए ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन दबीर के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। कोरोना लॉकडाउन के बायस जहां दीगर कारोबार मुतासिर हुए, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से टैक्सी ड्राइवर्स भी परेशान हैं। ढरकी से अब्दुल गफूर की रिपोर्ट देखें। कोरोना वायरस के पेश नगर सिंध हुकूमत के किए गए लॉकडाउन के बायस जिस तरह दूसरे कारोबार मुतासिर हुए हैं, वहीं टैक्सी ड्राइवरों का भी कारोबार मुतासिर हुआ है और वो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी के लिए परेशान है। गाड़ी लिए किस्तों पर ड्राइवरिंग वगैरह करते हैं, तो ये जो कि यहाँ पर कोई आ नहीं रहा, बंदे आ रहे हैं तो वो किराया मुनासिब नहीं मिल रहा। यहाँ से जाते हैं तो रास्ते में पुलिस वाले, रेंजर्स वाले ये रोकते, पूछताछ करते हैं, इतने बंदे क्यों उठाए, ये क्यों नहीं उठाए, फिर टाइम खराब करते हैं। पहली बात तो है नहीं, बिल्कुल भी काम लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल ठप हो गया है।
काफ़ी परेशान हैं हम। टैक्सी ड्राइवर अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी के लिए बहुत परेशान है और हुकूमत को चाहिए कि टैक्सी ड्राइवरों के लिए कोई पैकेज का ऐलान करे। कैमरामैन नौशाब सुमरो के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, साग टीवी न्यूज़, डेहर। डेरा गाजी खान में अल मुस्तफा स्काउट्स ओपन ग्रुप की जानिब से DPO ऑफिस, ट्रॉमा सेंटर, ऐवान अदल, मसाजिद, इमाम बारगाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर जरासीम कुश स्प्रे किया गया। रिपोर्ट करेंगे अली रजा। डेरा गाजी खान में अल मुस्तफा स्काउट ओपन ग्रुप की जानिब से DPO ऑफिस, ऐवान अदल, ट्रामा सेंटर, मसाजिद, इमाम बारगाहों और चर्च के साथ साथ मुख्तलिफ दफातर में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती स्प्रे किया गया। अल मुस्तफा स्काउट ओपन ग्रुप ने पिछले एक हफ्ते से ये मुहिम जारी रखी हुई है, जिसे डेरा गाजी खान की सियासी और समाजी शख्सियात ने खूब सराहा और उनकी खूब हौसला अफजाई की। मैं नदीम गौस एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, एक्स प्रेसिडेंट बार हूँ। तो बड़ी खुशी हुई है कि आप हमारी बार में तशरीफ लाए हैं और ये जो है जरासीम को स्प्रे कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं और ये सारा काम आप फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई है। डेरा गाजी खान के अहम मकामात पर जरासीम का स्प्रे करने का मकसद कोरोना जैसे मूजी मर्ज पर काबू पाना है, जबकि दूसरी जानिब अल मुस्तफा स्काउट ओपन ग्रुप डेरा गाजी खान के मेंबर ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल मुस्तफा स्काउट ओपन ग्रुप डेरा गाजी खान की तरफ से DG खान में, सिटी में और तहसील कोट छोटा के अलावा दीगर जो हमारे पास इलाके हैं, कोटद्दू है, मुजफ्फरगढ़, इन तमाम इलाकों में मदारिस, मसाजिद, इमाम बारगाह के साथ साथ पुलिस स्टेशन, ऐवान अदल और दीगर कौमी इदारे, सब जगहों पे हमने स्प्रे किया है और पब्लिक प्लेसेस को भी टच किया जहाँ के आवाम की आमद-ओ-रफ्त है, बैंक्स हो गए, बाकी चीज़ें, तो इन सब जगहों पे हमने स्प्रे किया और इंशाअल्लाह ये काम हमारा जारी रहेगा। अल मुस्तफा स्काउट की जानिब से डेरा गाजी खान में होने वाले स्प्रे से जहां कोरोना जैसी मूजी मर्ज पर कंट्रोल पाया जा सकेगा, वहीं लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने की आगाही पैदा होगी। अली रजा हमदानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मुल्तान ने जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1112 ऑफिस का दौरा किया और कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर अपनी ड्यूटियां सरअंजाम देने पर रेस्क्यू एहलकारों को खूब सराहा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद तौकीर। जलालपुर पटिया के मुमताज अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए मजहबी तंजीम दावत इस्लामी के ज़ेर-ए-एहतमाम ब्लड डोनेट सेंटर कैंप किया गया। दावत इस्लामी के मेंबरान और शहरियों की कसीर तादाद ने दूर दराज इलाकों से आकर ब्लड डोनेट किया। शहरियों का कहना था कि लॉकडाउन के बायस थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड नायाब हो गया था, जबकि मरीजों को ब्लड की अशद जरूरत थी। इसलिए हमने दूसरे शहरों की तरह जलालपुर पटिया में ब्लड डोनेट सेंटर कैंप किया। इलाका जलालपुर पटिया के नौजवानों से अपील है कि इंसानियत को बचाने में किरदार अदा करें। कैमरामैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ फरहाद मुनीर, सच न्यूज, जलालपुर पटिया। इलाकाई खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लॉकडाउन और दफा 144 के नफाज को यकीनी बनाने के लिए टंडू अलायार में फ्लैग मार्च किया गया। SSP टंडू अलायार रुखसार अहमद खारवड़ की कयादत में जिला भर के पुलिस, मोबाइलों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के हमला फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान स्पीकर पर कानून पर अमल दरामद करने के ऐलान किए गए। पुलिस ने डबल सवारी, लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में 6 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि मोटरसाइकिलों को तहवील में ले लिया और दूसरी जानिब मसाजिद में नमाज जुम्मा के इज्तिमात में SOPs पर अमल दरामद के लिए पुलिस तैनात की गई है। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने मियांवाली में कोरोना वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रेस्क्यू 1112, पुलिस और पाक आर्मी, जिला इंतजामिया और दीगर इदारों के एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए गुलपाशी की। जाहिद अब्बास रिपोर्ट करेंगे। मैं याद वफा को आऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा। मियांवाली में कोरोना वायरस के मरीजों की बहाली के लिए फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रेस्क्यू 112, पुलिस, पाक आर्मी, जिला इंतजामिया, दीगर इदारों के अफराद को लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने खराज तहसीन पेश करते हुए गुलपाशी की। इस मौके पर DC मियांवाली उमर शेर चट्ठा, DPO मियांवाली हसन असदलवी और दीगर अफराद मौजूद थे। अताउल्लाह ईसा खेलवी का कहना था कि ये हमारे हीरो हैं जिन्होंने जानफशानी से काम किया है और आज मियांवाली में कोरोना वायरस के हवाले से अमन है। मैं समझता हूँ ये फ्रंट लाइन पे जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे लेडी डॉक्टर बेटियां हैं, हमारी बेटियां नर्सेज के उसमें हैं, जो इन्होंने जो खिदमत की है, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे वो जज्बे हैं जो उन अपने भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए इन्होंने वक्त दिया है और जिस तरीके से इन्होंने खिदमत की है, मैं इनके लिए दुआ गो हूँ और मैं इनके लिए बहुत ही खूबसूरत जज्बात रखता हूँ
अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो। मियांवाली में कोरोना वायरस के 20 मरीज मुतासिर हुए, जिनमें से 7 मरीज ठीक हो चुके हैं। बाकी मरीजों के भी फॉलो अप टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जल्द वो भी सेहतयाब होकर घरों को लौट जाएंगे। कैमरामैन नियाज शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज, मियांवाली। एहसास कफालत की रकम ना मिलने पर लिया के इलाके बस्ती कुम्हारों के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रिपोर्ट देखिए ज़ुहैर दुरानी की। लिया का नशेबी इलाका बस्ती कुमारा और गिरदो नवा के दिहाड़ीदार तबका लॉकडाउन के बायस बेरोजगार हुआ, तो वहीं एहसास कफालत प्रोग्राम में नाम ना आने पर घरों में नौबत फाकू तकान पहुंची। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का कहना था, असा गरीब बंदे हैं, ऐसा को बेनजीर पैसे मुड़ी कड़ाई नहीं मिले, ढेर टबर जिन्हें को नहीं पाए मिलते। मजदूर बंदे जिवें का अगू देख हालात मुसीबत दे आप दे धकड़े त्रेंती मरदे जिवें का यक्या के बिघार खड़ वञो कितु आनु ते बच्चा को रोजी खवाऊं साको बेनजीर दे पैसे मिलदा न वो इमरान खान सारे गरीब बंदे आसे सारे बंद करा दी। मजदूर बंदे लता दा जोड़ा दे मरीज हैं को कशे नहीं मिले, भूखो मरदे पाए कशे कानी खुदा दे हलोका को मिलदे पाए, जिम्मेदारा को मिलदे पाए। लॉकडाउन की वजह से इमरान खान ने साको कुछ नहीं दी, न साको बेनजीर वाले पैसे मिले, न एहसास प्रोग्राम दा मिले। जेड मार दा ये बीमारी शुरू थई है, उन मार दे घर है, ना कोई दिहाड़ी है ना कोई मजदूरी है, बस घर निकम्मे खाने था। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान हुकूमत से मुतालबा किया, सर्वे में पाए जाने वाले नकायस को दूर करते हुए हम गरीबों की मदद की जाए। अब जरूरत इस अमर की है ऐवान इक़्तिदार में बैठे जिम्मेदारान को इन गरीबों के बच्चों को भूख के हाथों मरने से बचाने के लिए इकदाम उठाना होंगे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। आपको बताएं बाजोड़ में एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत शफाफ तरीके से रकम की तलसील का सिलसिला जारी है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खार ने मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा करते हुए बुजुर्ग मर्द और खवातीन को हर किस्म की सहूलियात के बारे में हिदायत जारी की हैं। सलीम खान रिपोर्ट करेंगे। कबायली जिला बाजोड़ में एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गरीब अवाम में रकम की तहसील का सिलसिला जारी है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खार फजल रहीम ने मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे किए और वहाँ पर सहूलियात की कमी को पूरा करने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करते हुए अमले को हिदायत जारी की कि वो हर किस्म सहूलियात फराहम करे ताकि बुजुर्ग मर्द और खवातीन को रकम की वसूली में किसी किस्म के मुश्किलात का सामना न करना पड़े और वो आसानी के साथ अब शफाफ तरीके से अपनी रकम को वसूल कर सके। एहसास प्रोग्राम के जितने सेंटर्स हैं उनके ऊपर जो बेसिक नेसेसिटीज़ है बिजली से रिलेटेड, यानी वहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं और बैठने के लिए खवातीन और बुजुर्ग जो हैं उनको सिटिंग अरेंजमेंट्स वो सारा हमने प्रॉपर किया हुआ है। याद रहे कि इससे पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर खार ने एहसास प्रोग्राम के तहत कम रकम देने पर कई रिटेलर्स को गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। कैमरा टीम के साथ सलीम खान, सच न्यूज, बाजोड़। जलालपुर भटिया में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने खून के अतियात दिए। रिपोर्ट करेंगे फरहाद मुनीर। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मुल्तान रेस्क्यू 1122 डॉक्टर नातिक हयात ने जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1122 ऑफिस का दौरा किया और रेस्क्यू एहलकारों को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर ड्यूटियां सर अंजाम देने पर खूब सराहा। इस मौके पर डॉक्टर नातिक हयात का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि कोरोना वायरस एक खतरनाक वबा है और इसके खिलाफ हमारे रेस्क्यू के जवान फ्रंट लाइन पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जलालपुर पीरवाला आने का मकसद ये था यहाँ जो रेस्क्यूअर्स हमारे दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करना, क्योंकि फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले मुजाहिदों को जब तक खिराज तहसीन पेश न किया जाए उस वक्त तक इनका हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिला तफरीक आप समझते हैं महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए जहाँ एक रूटीन की इमरजेंसी को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ कोरोना जैसी एक आफत है उसका भी मुकाबला कर रहे हैं अपनी जिंदगियां खतरों में डालकर। इस मौका पर इंचार्ज रेस्क्यू 1122 जलालपुर मोहम्मद इमरान और मोहम्मद वकास समेत रेस्क्यू के दीगर अफसरान और एहलकार भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ तौकीर रजा सोमरो, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। विहाड़ी में झाड़ू लगाकर अपना पेट पालने वाली एमए पास लड़की की खबर सच न्यूज पर नशर होने पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। गरीब खातून को सरकारी नौकरी मिल गई। आयशा ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब और सच टीवी का शुक्रिया अदा किया। सच टीवी वालों को शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ को बुलंद किया और मुझे डीसी साहब ने आज अपने ऑफिस में बुलाकर मुझे डीपी स्कूल में परमानेंट जॉब देने का मौका दिया। लिया के शहर फतेहपुर और उसके गिरदनवाह में भी गंदम की कटाई जारी है। गंदम की कटाई के बाद थ्रेशर से गंदम को निकालने का सिलसिला भी शुरू हो गया। चौधरी शफीक रिपोर्ट करेंगे।
और इसके गिरदोनवा में गंदम की कटाई तेजी से जारी है। छोटे काश्तकारों की जानब से गंदम की कटाई के बाद थ्रेशर से गंदम को निकालने का सिलसिला भी शुरू हो गया। काश्तकारों का कहना है कि इस बार गंदम की औसत पिछले साल की निस्बत बहुत कम है।